The introduction point section, I will request Aisha Salim to give the introduction of the low vision to all of us. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Aisha Salim and I am an optometrist in College of Ophthalmology and Allied Vein Sciences. Today I will talk about introduction of low vision. I will discuss some terminologies used in low vision and I will try to clear the concept of low vision. Then Ms. Madiha Nazli will lead the session. You can see the different devices and the assessment and a few interactive sessions will be conducted. So let's start with the introduction. Sorry. So here you can see that low vision is an irreversible vision loss. We have discussed it in many other lectures that any disease which cause irreversible vision loss is the root cause of low vision. It is always bilateral. It always causes irreversible visual loss. It has diverse effects and impacts on patients' personal life, social life, educational life, and vocational life. That is another lecture. So we will discuss about what do you think about the correction of low vision? Can it be corrected with anything like glasses or medicines or surgery? How many of you say that it can be corrected? The loss which has been occurred can be reversed with any type of medicine? No. The answer is no. We cannot reverse the visual loss with any medicine, any surgery, any optical correction, or any contact lens. So, what are your standard treatment options? I have discussed your standard treatment options are medicals and contact lenses. We cannot reverse the visual loss with all of these methods. Let's talk about the status of vision in low vision. If a person with low vision comes to you, he will show visual acuity less than 618 to the light perception in the better eye with best possible correction. It means that the presenting visual acuity will be 618 or less. 618 or less means the other eye will be showing less visual acuity than 618. जो पेशेंट की दूसरी आई है उसमें भी उसकी विजन 618 से कम होनी चाहिए. It is always bilateral. Then it is visual field. Visual field आपका 10 डिग्री से कम होगा. दोनों केसेस हो सकते हैं. विजुअल एक्विटी भी आपकी 618 से कम हो सकती है. विजुअल फील्ड भी कुछ कंडीशंस में 10 डिग्री से कम हो सकता है. लेकिन एक केस भी हो सकता है कि विजुअल एक्विटी 618 से बेटर हो लेकिन विजुअल फील्ड 10 डिग्री से कम हो. तो दोनों मिलके भी लो विजन कॉज कर सकते हैं और इंडिविजुअली भी. दिस इज द प्रेवलेंस. 2.2 billion person in world are suffering from visual impairment and 1 billion are, I think, blind. We can confirm it by Ms. Madiha Nazli. So we have talked that it is an irreversible visual loss which cannot be corrected with any means like medicine or surgery. What we are going to do next? What are the options left? The options left are rehabilitation methods. Rehabilitation methods include different sort of low vision devices, counseling, and optical and non-optical devices. Let's talk about some low vision devices. You can see the picture. The girl is using a handheld magnifier which has a handle with it. उसने हैंडल हाथ में पकड़ा हुआ है और उसके साथ वो रीडिंग कर रही है. तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस हैंडल? इसके अंदर बैटरीज लग जाती हैं तो ये इल्यूमिनेशन का एक्स्ट्रा एडवांटेज देते हैं.
There are different Lovian therapies. इस पे मिस मदीहा बात करेंगी. There are functional vision therapies, orientation and mobility की therapies होती हैं या trainings होती हैं जो patients को करवाई जाती हैं. What is residual vision and what is lost vision? And why are we concerned with the residual vision? Just because we cannot treat the lost vision, we cannot restore the lost vision, we are only concerned with the residual vision. जितना रेटिना बच गया है, जितनी विजन बच गई है, उसी को मैक्सिमाइज करना है. जितना विजुअल लॉस हो गया है, अभी हम उसके साथ कंसर्न नहीं है क्योंकि वो वापस नहीं आ सकता. Asha, you have 1 minute more. Thank you, sir. Okay. There are different congenital acquired visual impairment abnormalities which cause visual impairment. Now, what is functional vision? Basically, this is the vision by which the patient performs. There is one term which we usually use, visual functions. Visual function is how the eye performs, and the functional vision is how the person performs with his or her vision. These are the different types of Lovian devices. You can see the telescopes, magnifiers, and filters. And these are different therapies which we use in our Lovian setup to maximize the remaining vision. And this is very interesting. This is magnifying mirror. So the acknowledgement for Professor Zahid Sahab, Dr. Shabana, Dr. Arif, Mahnoor, and 3rd year and 4th year optometry students. Any questions? Thank you so much, having a 6 year or more than 6 year experience in the Lovian. So now we have a Lovian Galaxy at our Lovian clinic. You can see next कीजिएगा. I just want to show the Lovian Galaxy. ये एक सेकंड, ये चलता है कि दूसरा चलता है? Okay. Here you can see it's a Lovian Galaxy at Lovian clinic. यहाँ पर जितने भी लोवियन सर्वाइवर्स हैं या स्टार्स हैं जिन्होंने अपनी विजन को इम्प्रूव किया और अपनी लाइफ को बैक टू मेन स्ट्रीम किया, उनके फीडबैक्स, रिटर्न फीडबैक्स दिए हुए हैं. आज हम एक लोवियन सर्वाइवर्स या स्टार ऑफ लोवियन गैलेक्सी उसकी जर्नी पे बात करेंगे. वो हमारे साथ मौजूद हैं. उनका नाम है अब्दुल बासित. मैं चाहूँगी कि वो आपके सामने यहाँ तशरीफ़ लाएँ. अब्दुल बासित को कोई चेयर दीजिएगा. इसको एक फॉर्मल सेशन बनाने की बजाय हम थोड़ा इंटरेक्टिव रखेंगे. लोवियन असेसमेंट है कैसे, एक थोड़ा मिथ है अबाउट लोवियन के लोवियन. अब्दुल बासित प्लीज बैठिए. मिथ ये है कि लोवियन डिवाइसेस के बिना विजन जो है वो वापस रिस्टोर नहीं की जा सकती. मतलब कि वंस इरिवर्सिबल विजन लॉस हो गया है तो अब विजन विद डिवाइसेस या डिपेंडेंसी टूल ही आप अपनी लाइफ को या अपने विजुअल टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं. हमने बहुत सारे केसेस पे इस मिथ को बस्ट किया है और इसी पे आज हम ये पूरा आपको जर्नी दिखाएंगे कि कैसे एक पर्सन की लाइफ जो कि पर्सन से पेशेंट में कन्वर्ट हुई, फिर आफ्टर मैनी मेडिकल और सर्जिकल मैनेजमेंट एक जर्नी जो 7 इयर्स से भी ज़्यादा पे मुहित है, वो एंड होती है लोवियन रिहैबिलिटेशन सेंटर पे और वापस फिर हमारा पेशेंट रिस्टोर होता है एक पेशेंट से पर्सन की तरफ और उसकी नॉर्मल लिविंग किस तरह रिस्टोर की जाती है. और लोवियन क्लिनिक में किस तरह से हम लोवियन डिवाइसेस और विदाउट डिवाइसेस
रिहैबिलिटेशन परफॉर्मेंस देते हैं। तो आप कोई इस हमारे पास अब्दुल बासित मौजूद हैं, अगर कोई क्वेश्चन करना चाहे। अब्दुल बासित का मैं इंट्रोडक्शन दिए देती हूँ। अब्दुल बासित 14 ईयर ओल्ड पे इनकी पहली क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन हुई। प्रीवियसली ही वाज हाई मायोपिक, और क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन के कुछ अरसे बाद इनकी बहन के साथ खेलते हुए लेफ्ट आई में ब्लंट ट्रॉमा हुआ, जिससे आरडी हुई। फिर मल्टीपल सर्जरीज का सिलसिला शुरू हुआ, और इसी दौरान में इन्होंने राइट आई में ग्लूकोमेटासेट्रोफी के थ्रू अपनी वीएन लॉस की, जो कि पीएल पे चली गई। उसके बाद ये ओनली लेफ्ट आई के साथ इनकी लाइफ चलती रही, जिससे इनकी स्कूलिंग, स्टडीज़, एवरीथिंग ख़त्म। ही वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू होम, इनकी कोई लियर एक्टिविटी नहीं थी। उसके बाद वंस किसी ने इनको लोवियन में रेफ़र किया। फिर लोवियन में जब ये आए, होल्डिंग द हैंड ऑफ हिज मदर, और इनकी प्रेजेंटेशन थी कि ये चल फिर भी नहीं सकते हैं इंडिपेंडेंटली, और अपना कोई भी डेली रूटीन में जो फंक्शनल टास्क हैं परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उसके बाद इनकी जो लोवियन टाइम, वो उन्होंने अपनी स्टडीज़ स्टार्ट की एंड अपनी लाइफ में वापस आई। ये आपको कुछ बताएंगे। जी अब्दुल बासित, आप ले लीजिए इसे। अस्सलाम वालेकुम। आप थोड़ा सा हमें बताएं कि आप लोवियन में आने से पहले आपको क्या-क्या मसाइल थे लोवियन के? लोवियन में आने से पहले ना मेरा हुआ था सबसे पहले ऑपरेट लेंस का, जो मुझे डले थे। तो उसके ना 1 मंथ बाद ही मेरा ना पर्दा उतर गया था लेफ़्ट आई का। उसका अभी ऑपरेट हुआ ही था, तो 17 दिन बाद फिर उतर गया। तो उसके बाद डॉक्टरों ने कह दिया था कि आप अब नहीं पढ़ सकते और आपने अब घर से नहीं निकलना बाहर। आपको कोई भी चीज़ ना हिट करे आके कि आपके ये जो थोड़ा बहुत है वो भी चली जाए। तो उसके बाद मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था स्टडी करना, कोई 4 साल मैंने नहीं की। उसके बाद फिर मैं घर वालों ने फोर्स किया, तो मैंने स्टडी शुरू की। तो मैं 9th और 10th राइटर के साथ किया और मैं पास हुआ था। तो उसके बाद मैं इधर आया हूँ म्यू हॉस्पिटल, इधर फिजियोथेरेपी कराई है, तो यहाँ बहुत अच्छा हुआ मेरे साथ। तो उसके बाद मैंने ना फर्स्ट ईयर इस दफ़ा खुद किया है। विदाउट एनी राइटर? जी, पहले तो मैं किसी के सहारे के बगैर चल नहीं था सकता, तो अब मैं अपने काम खुद कर लेता हूँ। अल्लाह का शुक्र है कि क्योंकि उसके बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते जब तक वो ना चाहे। जी, थैंक यू। और आजकल आप क्या करते हैं? म्यूजिक के बारे में बताइए। आजकल मैं अपने सिंगिंग वगैरह में टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि पहले मैंने सब कुछ छोड़ दिया हुआ था। तो मैं अपने टैलेंट को प्रमोट करना चाहता था, तो सिंगिंग मुझे ज़्यादा पसंद थी। तो अब मैं सिंगिंग कर रहा हूँ और साथ स्टडी कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह चाहा तो ज़रूर मैं कामयाब होऊंगा। Thank you so much. Here is the journey of जर्नी तो मैंने एक्सप्लेन कर दी, लेकिन अब ये चल रहा है। अच्छा, माइक ये ले लिया। लेकिन बात ये होगी कि हाउ दैट जर्नी कन्वर्टेड पर्सन फ्रॉम पेशेंट टू अ पर्सन। previously he was in category of legal blindness, और ये तो हमने एक्सप्लेन किया। many surgeries, meanwhile his right eye dropped PL due to glucometasatrophy. Okay. और लाइफ गेट अफेक्टेड ड्यू टू वेरी लिमिटेड इंडिपेंडेंट मोबिलिटी, क्योंकि इनको वीएन लॉस की वजह से एक तो ओनली आई, फिर उसमें डिक्रीज वीएन, उसके साथ ये अपनी ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं कर सकते थे, और ये घर तक रिस्ट्रिक्टेड रहे। इनकी सारी एजुकेशन और दूसरी एक्टिविटीज़ रिस्ट्रिक्ट हो गई। Education stopped and no more outdoor activities, completely abolished social activities। किसी शादी ब्याह में, तकरीबात में, कहीं भी अटेंड करने में इनको बहुत सारे problems थे, and the whole life was stuck to only a room। Parents was previously counseled about the risk of VN loss, they get overprotective। It's a dilemma of the community when they are counseled about the VN loss and decreased VN. The parents and the family members are overprotective. They don't let their
child or the family member to go and outside the home and do perform other visual tasks or activities. So this is a very depressing or discouraging towards our patients. And they took him to every known clinician in the hope might his VN be better. He may restore to the normal VN. And here I just want cope the cooperation of the family. अब्दुल बासित के केस में जो हमने इसको अचीव किया उसमें इनकी फैमिली का, इनके पेरेंट्स का, स्पेशली इनकी मदर का बहुत ज़्यादा रोल था, क्योंकि जिस फॉलोअप पे इनको जिस डे पे बुलाया गया, जहाँ जहाँ वो इनको लेकर के गई, इससे पहले भी इन्होंने मल्टीपल क्लिनिशियंस के पास इनको ट्रीटमेंट के लिए लेकर गए, और फिर इनका जी ये तो सारी हिस्ट्री हम आपको बता चुके हैं. एंड हेयर्स आस्क्ड इफ देयर इज एनी ट्रीटमेंट, देन आंसर वाज नो. फाइनली ही वाज रेफर्ड फॉर लोवियन क्लिनिक. एंड यहाँ से कि इनकी लोवियन में असेसमेंट पे प्रेजेंटेशन क्या थी. वीएन इनकी ओनली आई में, लेफ्ट ओनली आई में 1 लॉगमार थी जो 660 है. 2.5 mm इनकी नियर वीएन थी जो N14 को शो करती थी, और जस्ट 15 सेंटीमीटर पे. और कंट्रास्ट इनका वेरी डिक्रीज था, 10/25. डिफेक्टेड कलर वीएन थी, रिस्ट्रिक्टेड विजुअल फील्ड थे. फील्ड स्कोर जो लेफ्ट आई में था वो 45/100 था, जिसकी वजह से इनकी मोबिलिटी वेरी रिस्ट्रिक्टेड थी. ट्रायल ऑफ 6x कैप्लेरियन टेलीस्कोप दिया, जिससे इनकी वीएन 612 और लॉगमार 0.4 तक रिस्टोर हुई. और मैग्नीफाइंग ग्लासेस का इनको आफ्टर 3 ट्रायल्स के बाद इनको डिस्पेंस किए गए, +18 के मैग्नीफाइंग ग्लासेस फॉर रीडिंग पर्पस, जिससे इनकी N6 रीडिंग एक्यूटी रिस्टोर हुई. और इनको मोबिलिटी और ओरिएंटेशन के लिए ट्रेनिंग्स दी गई ताकि ये आउटडोर अपनी इंडिपेंडेंट मोबिलिटी परफॉर्म कर सकें. कंटिन्यूस 2 आवर्स लो वीएन थेरेपी इनको एडवाइस की गई घर पे, ताकि ये एक स्पेसिफिक डिस्टेंस से टेलीविजन या स्क्रीन वॉच करें. और कंटिन्यूस यूज़ के बाद इनका विजुअल परफॉर्मेंस, रीडिंग स्पीड भी बढ़ी जब इन्होंने 30 to 45 मिनट रीडिंग के लिए थेरेपीज परफॉर्म की. करेक्टेड वीएन विद येलो फिल्टर्स इम्प्रूव to 0.5 logmar आफ्टर द थेरेपीज. Reading speed improved with illumination and independent mobility also improved. Then restored अब्दुल बासित की जो लिविंग है वो वापस नॉर्मल उसकी तरफ रिस्टोर हुई. He restart studying back, completed secondary school examination as he told here. Now doing ICOM part 1 पास कर लिया है, दूसरा दे रहे हैं. Can move outside independently. Taking music classes at home, leisure activities, performing gardening and etc. at home. Now you can you have also इसको सुन चुके हैं मेरा ख्याल है, अब हम इसे प्ले नहीं करते हैं. How did it work? हुआ कैसे ये वीएन रिस्टोरेशन मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूँ कि ये सारी, अच्छा मुझे माइक देंगे. इंस्ट्रक्शन कोर्स कराने का मकसद ही ये है कि इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करें कि ये किस तरह से रिस्टोरेशन हुई. जब इससे पहले हम एक ट्रेडिशनल लोवियन प्रैक्टिस करते थे, जिसमें हर डिक्रीज्ड इरिवर्सिबल डिक्रीज्ड वीएन का मतलब था कि नाउ यू हैव टू लिव विद डिवाइसेस, देयर इज़ नो चांस ऑफ इम्प्रूवमेंट देयर. लेकिन जब हमने अब्दुल बासित को 6x कैप्लेरियन टेलीस्कोप का ट्रायल दिया, उसकी एंगुलर मैग्नीफिकेशन के थ्रू हमने एक हेल्दी एक्स्ट्राफोवियल लोकस फाइंड किया, और फिर उसके ऊपर हमने एक्सटेंसिव फंक्शनल थेरेपी करवाई, जिसमें डिस्टेंस वीएन थेरेपी, फिक्सेशन, स्पेस फिक्सेटर थेरेपी, ताकि विजुअल एक्सिस को हम इसेंट्रिकली डेवलप करवा सकें उस हेल्दी नॉन फोवियल लोकस पे. तो उस ये इसेंट्रिक फिक्सेशन पे बहुत सारी डिबेट है, लेकिन जब हम इसको प्रॉपर थेरेपीज़ के थ्रू मॉनिटर करते हैं तो हम ये टारगेट अचीव करने में कामयाब हो जाते हैं कि हम विजुअल एक्सिस को नॉर्मल, जो हमारा डेवलप्ड विजुअल एक्सिस है,
ऑप्टिकल एक्सिस के लॉन्ग उसे इसेंट्रिकली डेवलप कर पाएँ, और फिर हम उसे फंक्शनली रिस्टोर करने के लिए मल्टीपल थेरेपीज़ करवाते हैं एट द क्लिनिक एंड एट द होम एज वेल, ताकि फिक्सेशन बेटर हो सके। और फिर जब वंस फिक्सेशन डेवलप हो जाए उसके बाद फिर हम ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी डेवलप करवाते हैं थ्रू स्पेस फिक्सेटर एंड अदर मैनी थेरेपीज विच आर अवेलेबल एट लोवियन क्लिनिक। फिर उसके बाद ताकि उसका फील्ड इम्प्रूव हो और वो उस यूज़ कर सके अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में। तो ये हमारी रिजीम है एट लोवियन क्लिनिक नाउ। अब हम आपको कोई क्वेश्चन इससे रिलेटेड? Most of people are here from my college and they are student here, and if someone have any question regarding this and any other thing, yeah. जो ग्लास माउंटेड हैं टेलीस्कोप्स के, इस पे हम अभी आपको सारा वो देने लगे हैं डेमोन्स्ट्रेशंस हाउ दीज ऑल डिवाइसेस वर्क। बट यहाँ पर बाइनोकुलर स्पेक्टिकल माउंटेड टेलीस्कोप्स आर आल्सो अवेलेबल, बट ये जो हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं है। इनका IPD फिक्स्ड है और इसमें जो मैग्नीफिकेशन सिस्टम है वो 3x से मोर नहीं हो सकता, और चूंकि ये एक कॉस्मेसिस के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं है इसलिए हम इसकी तरफ बहुत ही कम जाते हैं। हम कप्लेरियन की जितनी भी टाइप्स हैं जिनकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा 2x से 10x तक अवेलेबल है, और ये हम देते हैं, डिस्पेंस भी करते हैं, बट नाउ जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया हम इसके थ्रू इसेंट्रिक फिक्सेशन डेवलप करवाते हैं। अच्छा, मेरी रिक्वेस्ट होगी ऑडियंस के, अगर आप कुछ चीज़ देखना चाहें तो ये एक आप इन्हें बता दें यूज़ कैसे करें। जी आप ये इस्तेमाल किस तरह लगाना तो बताएं, इनको जी इंस्ट्रक्शन है इसको लगाएं। ये डिस्टेंस मैग्नीफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसमें बाइनोकुलर टेलीस्कोप्स हैं। ये में हम इसको सबसे पहले इस पेशेंट के ऊपर लगाने से पहले एग्जामिनर खुद इसे फोकस करके लेटर को रीड करते हैं, तो उसके बाद फिर ये हम उनको पेशेंट को देते हैं और फिर हमने कहते हैं कि इनको रोटेट करें जहाँ से आपको एक वर्ड नज़र आए। दोनों से हम मूव कराते हैं, मैग्नीफिकेशन को एक लेवल पे लेके आते हैं ताकि पेशेंट बाइनोकुलरली सिंह मैग्नीफिकेशन को एक लेवल पे लेके आते हैं ताकि पेशेंट बाइनोकुलरली सिंगल विजन के साथ लेटर को रीड कर पाए विद मैग्नीफिकेशन। स्पेक्टिकल माउंटेड बाइनोकुलर्स इस तरह से हम प्रैक्टिस करवाते हैं नाउ। एंड इसके बाद मोनोकुलर टेलीस्कोप्स हैं, इसमें कुछ क्लिप ऑन भी हैं। जी, एंड नेक्स्ट इज़ गैलीलियन का एक हमारे पास ऑप्शन है 3x मैग्नीफिकेशन के साथ। ये क्लिप ऑन होता है, ये स्पेक्टिकल के ऊपर भी लग जाता है। तो इस पे लगा के मेरे लगा सर इसको फिर हम फिक्स करते हैं यहाँ से, यहाँ पे ऐसे ये इस तरह बोले। ये गैलीलियन टेलीस्कोप है, इसको हम डिस्टेंस एंड नियर उस मैग्नीफिकेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। रीडिंग टास्क को भी हम एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे रख के रीडिंग मटेरियल को फोकस कर सकते हैं इसके साथ। सर देख सकते हैं इसको, इसमें सर इसमें इतने करीब से नहीं है, ये टेलीस्कोप है, ये आपको इस डिस्टेंस पे वो करेगा। इसको मूव करें मैं करके केप्लेरियन की हमारे पास वैरायटीज़ हैं जिसमें हमारे पास वैरायटीज़ हैं जो 3x से स्टार्ट होती है और ये मोनोकुलर है। इसे आपने जब हम फिक्सेशन के लिए देते हैं तो इसे फोकस करके पर्सन के हाथ में दे दिया जाता है। आप देखें
have varieties here 3x, 4x, 6x and 8x and then last 10x. And x means this so all these हाँ एंगुलर मैग्निफिकेशन देता है. ये बात जहन में रखें. ये ऑब्जेक्ट को बहुत बड़ा नहीं करता बट उसका एंगल इतना बड़ा कर देता है कि ऑब्जेक्ट आपको नियर फील होता है. जी सभी के साथ की एक बहुत रेंज है, हमारे क्लिनिक में भी अवेलेबल है. इसमें मैं थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करती जाऊं. हमारे पास जो अवेलेबल डिवाइसेस की टाइप्स हैं मैग्नीफायर्स में, उसमें स्टैंड मैग्नीफायर्स हैं. सबसे पहले आप देख सकते हैं रीडिंग के लिए वहाँ से उनके पास वो होंगे ब्रोशर्स. यहाँ हमारे पास स्टैंड मैग्नीफायर्स हैं. इनमें से कुछ के फिक्स्ड स्टैंड्स हैं, कुछ के हम स्टैंड्स को फोकस कर सकते हैं, इसकी फिक्सेशन ले सकते हैं. और उसके बाद हमारे पास स्टैंड विद हैंड हेल्ड इल्यूमिनेटेड मैग्नीफायर्स हैं. ये सारी वैरायटीज़ हमारे पास मौजूद हैं. उसके बाद हैंड हेल्ड इल्यूमिनेटेड हैं. और हमारे पास पॉकेट मैग्नीफायर की बहुत सारी वैरायटी एट क्लिनिक मौजूद है. पॉकेट मैग्नीफायर्स कुड बी हैंडी और आप अपने उसमें लेकर के कहीं भी जा सकते हैं. और इसमें एक से ज़्यादा मैग्नीफिकेशन ऑप्शंस मौजूद हैं. दिस इज़ बार मैग्नीफायर. अच्छा, ये बार मैग्नीफायर है, इसके बारे में एक मैं मेडिकल ग्रेजुएट अगर यहाँ कोई बैठे हैं और जो एग्ज़ाम में भी जाने के ख्वाहिशमंद हैं, ये एक दफ़ा हमने लिखा था एग्ज़ाम में टोक्स IMM. तो वो मेरा एक पीजी ने बाद में बताया कि सर ये पता नहीं क्या वो डंडा सा था, मुझे समझ नहीं आया. मैंने कभी यूं देखूं, कभी मैंने कहा ये क्या है मुसीबत. आखिर मैंने तंग आके ना यूं फेंक के मारा, ये क्या तो वो एकदम पड़ा तो वो मैग्नीफाई हो गया. मैंने कहा ओह ये तो मैं लो विजन डिवाइस. तो ये काइंडली अब देख लें, ये आप लोगों को सबको क्योंकि देखें जो मेडिकली या सर्जिकली उस एंड स्टेज पे बीमारी आ गई कि यू नो दैट इट कैन नॉट बी इम्प्रूव, लेकिन दैट इज़ नॉट एंड ऑफ द लाइफ. उस इंसान के आगे 30, 35, 50 साल ज़िंदगी पड़ी है, आपने उसको यूज़फुल पर्सन बनाना है. तो प्लीज़ वी हैव गॉट नाउ सो मेनी डिवाइसेस, ये ज़रूर सीख लें. लूप आपने बहुत ज़्यादा उसमें देखे होंगे, वॉच मेकर्स एंड गोल्ड स्मिथ्स लोगों के पास और भी कुछ लोगों के पास ये लूप हैं. इन्हें आप एडजस्ट कर सकते हैं विद योर ग्लास और विद एनीथिंग. सर वो ग्लास के साथ एडजस्ट कर लेते हैं इसको इस तरह से और फिर इसको फोकस करते हैं. जी जी मैं दिखाती हूँ. जी जी सर मैं अपने पे प्रैक्टिस करती. और ये मैग्नीफायर्स की बहुत सारी रेंज के बाद हमारे पास जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं वो फिल्टर्स हैं. आपने देखा कि जब भी हमारे पास जितने भी केसेस हैं उनमें जब पहली एक रिफ्रैक्शन की जाती है, एक आम ट्रेडिशनल रिफ्रैक्शन मैं नहीं कहना चाहती, एक जो रिफ्रैक्शन क्लिनिक में ऑप्टोमेट्रिस्ट रिफ्रैक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो जब विद बेस्ट रिफ्रैक्शन हमारे पास आता है तो उसके बाद एक लो विजन रिफ्रैक्शन परफॉर्म की जाती है. उस रिफ्रैक्शन का एक जो मेन चीज़ है, मेन क्रक्स वो यही है कि इसमें हम ग्लास के कलर को चेंज कर देते हैं. यहाँ पर हमने 2 पार्ट में रखे हुए हैं, लाइट फिल्टर्स एंड डार्क फिल्टर्स. जितने लाइट फिल्टर्स हैं ये हम को रॉड डिजीज़ में देते हैं. जितने भी डार्क फिल्टर्स हैं ये हम कोन डिजीज़ में, जहाँ सेंट्रल मैकुलर डिस्ट्रॉफीज हो, उसमें देते हैं ताकि प्यूपल डायलेटेड रहे डार्क फिल्टर्स के थ्रू और एक्स्ट्रा फोवियल लोकस जो है वो हम फाइंड कर सकें कौन डिजीजेस में. यस, लाइट रॉड्स डिजीज में पेरिफेरल लॉस के साथ जो हैं. तो जितने भी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा और इस तरह की पेरिफेरल डिस्ट्रॉफीज के साथ आते हैं उनकी येलो या एम्बर फिल्टर के साथ हम ये देते हैं. येलो या एम्बर फिल्टर बहुत ज़्यादा हमें 1 से 2 लाइंस की इम्प्रूवमेंट मिलती है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा या पेरिफेरल लॉसेस के साथ जो आते हैं. ये फिल्टर्स जो हैं ये आपके ऑप्टिकल जो प्रिस्क्रिप्शन है रिफ्रैक्शन की उसके साथ होते हैं. येलो ग्लासेस होंगे, रेड होंगे. नो, ये हम रिफ्रैक्शन करते हैं एंड रिफ्रैक्शन की प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिख के देते हैं स्पेक्टिकल विद दैट फिल्टर, और वो उस कलर में ये आपका बनता है. ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं होता.
मोबिल हाँ जी, बस ये बाकी असेसमेंट मटेरियल है, मेरा नहीं ख्याल कि असेसमेंट की इसमें जी ये जी डिफरेंस है यहाँ पर। जैसे हमने कहा कि हम ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी की ट्रेनिंग्स भी देते हैं, तो ये हमारे पास वाइट केन्स मौजूद हैं। दो वैरायटी यहाँ हमने सामने आपके रखी है। एक जो नॉर्मल वाइट केन है वो एक ब्लाइंड पर्सन यूज़ करता है, और अगर उसकी केन में कोई कलर है तो वो डिपिक्ट करता है कि वो ब्लाइंड हैव सम अदर डिसेबिलिटी ऑल्सो, कोई हेयरिंग इशू, कोई और प्रॉब्लम भी उसका हो सकता है, कोई लिम्ब डिसेबिलिटी या इस टाइप की कोई हो सकती है। तो इसकी जो ओरिएंटेशन है ये मैं आपको देना चाहूँगी कि हम मोबिलिटी की ओरिएंटेशन कैसे देते हैं। आपने वाइट केन को इस तरह से पकड़ना है, नॉट लाइक दिस, इस तरह से नहीं, हमेशा इस तरह लेना है, और इस अपने फर्स्ट फुट के साथ, अपने राइट फुट के साथ इसको टैप करते हुए मूव करना है। मैं आपको मूव करके दिखाऊंगी ऐसे, और हमेशा अपना फेस अप रखना है, एक हैंड अपना यहाँ रखना है, यहाँ या यहाँ। तो आपने फेस अपना अप रखना है। पेशेंट को ये नहीं कहते कि वो नीचे को देखे, बिकॉज हमारा पेशेंट इतना व्यूली स्टेबल नहीं है। तो अगर वो केन के साथ चलेगा तो वो इस अपराइट पोजीशन में टैप 3 टैप करता हुआ मूव करेगा, ताकि उसको कोई भी बम्प है, अगर कोई मड है या इस तरह का कोई भी चीज़ है, तो वो उसे आइडेंटिफाई करे और अपने आप को सेव कर सके किसी किस्म के उससे ऑब्स्टेकल से। तो अगर कोई करना चाहे। आप ही की जा रही है, तुमसे तो मैं नाराज हूँ, मैं घर बुलाया नहीं तुमने। ये भाई ट्राई करके देखो जरा, जो क्वेब से बाहर हैं वो लोग ट्राई करके देखें, शायद वहाँ आप लोग देखें। ये देखें कितनी इन्होंने इन्फॉर्मेशन बताई है कि ये ग्रीन और ब्लैक का भी फ़र्क है। अच्छा, ये वो कोई, हाँ, और ये भी हमारे पास अवेलेबल है। और अगेन वी आर थैंकफुल टू दी INGOs कि जो ये हमें प्रोवाइड कर। ये देखें, ये सही इन्होंने करें ज़रा डिस्प्ले, बहुत अच्छा ये कर रहे हैं, करके दिखाएं कैसे चल रहे हैं। ठीक चल रहे हैं। 3 दफ़ा टैप करना है, 3 दफ़ा, ताकि आपके सामने जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं आप आइडेंटिफाई कर लें। और आपको ये, मुझे खुद आज पहली दफ़ा पता चला कि ये ब्लैक और ग्रीन का भी फ़र्क होता है। तो देखें, शी इज़ गॉट लॉट ऑफ नॉलेज, और इनके माशाल्लाह स्टूडेंट्स भी हर जगह हैं। ब्लैक और ग्रीन का जो वाइट और ब्लैक हैंड, हर आपको वाइट केन ब्लैक हैंडल के साथ नज़र आएगी, और वो एक ब्लाइंड पर्सन को शो करती है कि जो पेशेंट है वो मे बी ब्लाइंड और व्यूली इम्पेयर्ड है। लेकिन अगर वाइट केन हैव सम अदर कलर, हैंडल पे ब्लैक की बजाय येलो, रेड, ग्रीन कोई भी कलर है, तो वो शो करता है कि पर्सन हैव सम अदर डिसेबिलिटी अलोंग विद ब्लाइंडनेस। एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, आई एम सॉरी, वो कह रहे हैं कि जी आपने इतना यहाँ अट्रैक्ट कर लिया है कि वो साथ वाले हॉल में कोई जा ही नहीं रहा। तो यहाँ पे वाकई अगला जो शो चलने लगा है ना, हम थोड़ा सा इश्तहार चला दें। इसके बाद कॉन्टेक्ट लेंस का है शो। कॉन्टेक्ट लेंस का मटेरियल लाए हुए हैं जी हम, कॉन्टेक्ट लेंस। हाँ चलें, एनीवे बीनिश आ जाएँ, आप अपनी यहाँ दुकान सेट कर लें, इतने ये आप अपनी चीज़ें संभाल लें। मैं इसको ज़रा सम अप करना चाहता हूँ। अगेन आई वुड अलूड कि जो चीज़ें अगर किसी में डिसेबिलिटी या लो विजन डेवलप हो गई है, विच इज़ इरिवर्सिबल, या इरिवर्सिबल नहीं, या इलाज हो भी रहा है, तो स्टिल द लाइफ गोज़ ऑन। उस दौरान आपने अबेंडन नहीं कर देना, जा उन तेरा कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं, उसको अप्रोप्रिएट रेफरल करना है, ताकि वो जो भी डिवाइस, और इन्होंने थेरेपी भी बहुत, थेरेपी का बताया आपने, थेरेपी और डिवाइस के साथ मिलके ये लोगों को बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। और इसमें मैं अपडेट थोड़ी सी देना चाहूँगा कि एक डिवाइस डेवलप हुई है, आप ज़रा इधर खड़े हों, उसमें ये सिस्टम है कि वो कहाँ गए, हेड माउंट, ये पकड़ लें, ये यहाँ माथे पर लगाएं, कि यहाँ पे एक कैमरा, जिस तरह इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोप पहनते हैं, एक कैमरा माथे पर लगा हुआ, एंड दैट कैमरा इज़ टेकिंग द इमेज, और वो इमेज ट्रांसफ़र हो रहा है पीछे। यहाँ उन्होंने अपनी जो शर्ट या चेस्ट के बैक के ऊपर यहाँ इधर कर,
यहाँ पे उनके एक मशीन है कि विच ड्रॉज द इमेज, तो वो बैक पे इमेज बनाती है कि ये गाड़ी आ रही है। हैं, ये बताओ भाई मैंने क्या बनाया यहाँ? हैं, खरबूजा, पता चल गया उसे फौरन। हैं, तो इस तरह ये टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। इसके अलावा देयर इज़ ए टेक्नोलॉजी जिसको हम कहते हैं फैंटम आई, तो एक होती है ना बायोनिक आई। और आप देखेंगे अभी हमें ये मजाक लगती है, लेकिन वेयर आई वाज ट्रेन्ड इन रॉयल विक्टोरियन आई एंड ईयर हॉस्पिटल, वहाँ पे कॉकलियर इम्प्लांट डेवलप हुआ था। और आई वाज सरप्राइज कि हम तो कहते हैं ना जी हमें 200 एकड़ जगह दे दें तो फिर हम रिसर्च शुरू करेंगे, और इतना मिलियन का बजट दे दें। वो 12.5 मरले की एक बिल्डिंग थी, डबल स्टोरीड पुराना घर, उसमें उन्होंने बैठ के रिसर्च की एंड दे केम अप विद कॉकलियर इम्प्लांट विच हैज चेंज्ड लाइफ ऑफ परहैप्स नाउ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, जो बेचारे गूंगे बहरे बन के चलते। नाउ दे आर वर्किंग ऑन बायोनिक आई। तो आई होप एंड विश कि दिस विल बी अ ड्रीम कम ट्रू, क्योंकि जिसको भी मैं तो कम से कम ये करता हूँ, अब आई डोंट नो डॉक्टर साहब, जब भी मैं ईविसरेशन या इन्यूक्लेशन करता हूँ तो आई ऑलवेज टेल देम द होप कि दिल बी ए बायोनिक आई डिवाइस अवेलेबल वन डे एंड होपफुली वी कैन फिक्स ऑप्टिक नर्व। मेरे ख्याल तो इसलिए ईविसरेशन में ज़्यादा होप है, तो इसलिए जब आप वो कॉटराइज करें ज़रा एहतियात से किया करें। ओके जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी एक्टिव पार्टिसिपेशन। अब कॉन्टेक्ट लेंस वाली टीम आ जाए, किसने शुरू करना है ये? अब ये आप यहीं होंगी, बाद में भी आप देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगला सेशन हमारा कॉन्टेक्ट लेंस पे है। कॉन्टेक्ट लेंस किस किस ने यूज़ किया है? हाथ खड़ा कर देंगे। बस 3 लोगों ने, मान जाओ इसे। कुछ नहीं किया कभी? हाँ, आपने भी किया। वैसे देखें, कॉस्मेटिक तो बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं ना, और मैं तो वैसे अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा हैरान हुआ, फिर परेशान हुआ कि खातून मेरे पास आई तो वो उनकी आई रेड थी, तो मैंने चेक किया, तो मैंने कहा ये माशाल्लाह आपकी आई लैशेज़ बड़ी लंबी लंबी हैं। कहती ये तो आर्टिफिशियल है। लेकिन वो आर्टिफिशियल आम नहीं थी, वो परमानेंटली इम्प्लांटेड थी। वो कहती 6 महीने तक रहती है ऐसा। तो नाउ थिंग्स आर चेंजिंग, यू नो, एवरी परहैप्स मोमेंट। तो कॉन्टेक्ट लेंस भी अब वो कई लोग जो पार्टियों में जाते हैं वो फ्लोरेसेंट कॉन्टेक्ट लेंस लगा के जाते हैं, वो अंधेरे में भी चमकते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये है कि कॉन्टेक्ट लेंस की एक मैं स्टोरी सुना देता हूँ, वो सुन लें ताकि आपके दिल में कॉन्टेक्ट लेंस सीखने का भी जज्बा पैदा हो जाए। और अगेन जो मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं उन्हें मैं बता दूं कि हमने IMM के इम्तहान में एक दफ़ा कॉन्टेक्ट लेंस रखा था भाईजान, कॉन्टेक्ट लेंस रखा था डॉक्टरों के लिए। वो एक पेट्री डिश में हमने डाल के रख दिया, तो उसमें आधे डॉक्टर नहीं बता सके कि ये कॉन्टेक्ट लेंस। किसी ने कहा कि जी ये एयर बबल लिखा हुआ था, किसी ने कहा कि जी ये सिलिकॉन ऑयल है, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ। तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि वी शुड ऑल लर्न अबाउट इट। और पेशेंट आपके पास आता है तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स उससे हो सकती हैं। एक यंग लड़की जिसकी शादी हो रही थी और वो मेकअप कराने गई ब्यूटी पार्लर में, और वो जो मशाता थी, सही लफ्ज़ मशाता है, उन्होंने कहा कि जी आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, और अगर आपके कॉन्टेक्ट लेंस भी हम लगा दें ना ब्लू कलर के, तो बस फिर तो काम बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा, उसने कहा बेचारी ऐसे मीडियोकर घराने से थी, शायद बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं थी। उसने कहा ठीक है लगा दो, और वो पता नहीं कब के पड़े हुए थे कॉन्टेक्ट लेंस, उसने लगा दिए। और फिर वो वलीमा बमुश्किल ही बेचारी का हुआ। अगले दिन वो बड़ी सवेर रेड आई के साथ हमारे पास आई थी। एक जगह हम मेडिकल कैंप लगाते हैं वहाँ, एंड वो फिर कॉन्टेक्ट लेंस रिमूव किया, उसके नीचे से ऑलरेडी उसको बैक्टीरियल कैराटाइटिस हो चुका था, एंड शी डेवलप्ड ए लार्ज कॉर्नियल ओपेसिटी। तो इसलिए कॉन्टेक्ट लेंस वही ना कि कोई चीज़ भी बिल्कुल ख़राब या बिल्कुल ही अच्छी नहीं होती, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो बहुत सारे लोग कॉन्टेक्ट लेंस के बगैर नहीं वो अपनी लाइफ की उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी होती नहीं कर सकती। इवन जो माएँ होती हैं बच्चों को कर रही होती हैं, जिसका हाई मायोपिया है, उसको बच्चे को फीड करने में केयर, बच्चा सबसे पहले ऐनक ही पकड़ता है, तो उनके लिए कॉन्टेक्ट लेंस यूज़फुल हो जाता है।
बट वी नीड टू नो के हाउ टू केयर अबाउट दिस डिवाइस। जी आ गए जी कॉन्टेक्ट लेंस वाली टीम, आप शुरू करें ना, जो भी आप उधर पहुंच जाएं, अपनी प्रेजेंटेशन शुरू करें। आप किसी की हो चुकी है, किसी की है अपलोड? वो तो है नहीं ना, आप यहाँ दे दें, इन्हें दे दें, यहाँ से चला दें यार, यहीं से चला दो। नहीं लैपटॉप में अगर दे दें, आपको लैपटॉप लगा दो, आप अपने लैपटॉप में दे देंगे। यू हाँ, ये अपना लैपटॉप दे दें, इसमें है। चलें जी, अब जब तक हम शुरू कर रहे हैं, कोई कॉन्टेक्ट लेंस के बारे में आप लोग कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? खुद से आप इतनी एक्सपीरियंस्ड हैं और आप इतने दिनों बाद हमें मिली, हमारा दिल चाह रहा है आपसे बात करें। कुत्सिया हमारी सीनियर रजिस्ट्रार हैं और अब एपी होने वाली हैं, और माशाल्लाह बहुत अच्छी ऑर्बिट एंड ओक्लोप्लास्टिक सर्जन हैं और पीएचडी कर रही हैं केई में, और कुछ देर के लिए हमने इन्हें सर्विसेज भी भेजा हुआ है ताकि उन्हें भी सिखा के आ जाएं। आप बताइए। थैंक यू सर। मेरा ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन जो भी मैंने केसेस देखे हैं बहुत बुरी सिचुएशन में देखे हैं, तकरीबन ब्लाइंड ही हो जाती हैं, इवन एंड ऑफ सलमाइटिस तक के केसेस देखे। मेरी पर्सनल थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। एक रिलेटिव थी, उन्होंने शादी के लिए ऐसे ही कॉन्टेक्ट लेंस लगाए फंक्शन अटेंड करने के लिए। I'm again here with another presentation in the instruction course of contact lenses. Today I'm going to talk about aphakic contact lenses or pediatric aphakia, contact lens for the treatment of pediatric aphakia. So you all know what pediatric aphakia is and what are the other treatment options for pediatric aphakia. Everyone is well informed about pediatric aphakia, am I right? So when we talk about pediatric aphakia and contact lenses, certainly we think about the contact lens in adults for aphakia. Do we prescribe contact lens in adult aphakia? Yes or no? Yes, we can prescribe and we can advise contact lenses in adult aphakia, but there are more convenient options available with no or minimum risk factors. Methodology is the same as in pediatric aphakia. So what are the objectives? Review the importance of fitting contact lenses in children. Review different types of pediatric contact lenses and recommendations. Aphakia due to congenital cataracts or trauma is the most frequent indication for young fitting children or infants. Why do we consider aphakic contact lenses in children? Because the surgeon often don't implant an IOL in children under 2 years of age. So जब आपको कहा जाता है कि बच्चे को सफ़ेद मोतिया था लेकिन हमने इसका लेंस निकाल दिया, अभी हम इसमें IOL इम्प्लांट नहीं करेंगे, तो what options we have for that child? आप उसे ग्लासेस लगा सकते हैं, आप उसे कॉन्टैक्ट लेंसेज लगा सकते हैं। जब हम सोचते हैं कि इतने छोटे से बच्चे को कॉन्टैक्ट लेंस लगाएंगे तो एक दफ़ा हम खुद परेशान हो जाते हैं। इट इज़ अ चैलेंजिंग सिचुएशन फॉर प्रैक्टिशनर्स एज वेल। हाउ इट इज़ डिफरेंट देन एडल्ट्स। आप जब बच्चों के बारे में सोचते हैं तो ये कैसे डिफरेंट है? बच्चों में आपके बच्चों का जो इन्फेंट्स हैं या चिल्ड्रन हैं, इनका पल्पेब्रल फिशर स्मॉल होता है, इनका ऑर्बिकुलर सर्कुलाई की जो टोन है वो स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है, और इनकी एक्सियल लेंथ और पावर रैपिडली चेंज होगी, विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती जाएगी। तो आपको ये सारे फैक्टर्स जहन में रखने हैं पीडियाट्रिक एफएक्या में कॉन्टैक्ट लेंस लगाने से पहले। Resultant aphakia after congenital cataract removal is best corrected with contact lenses. In unilateral aphakia, glasses have the drawback of anisoconia and issues with magnification. You all know that aphakic glasses cause anisoconia. And what other is pincushion effect? High plus lens always causes pincushion effect, and high minus lens always causes barrel distortion. So contact lenses may be worn indefinitely. It is determined that an IOL is contraindicated. The child may be in contacts for many years until the eye has developed completely. Most surgeons prefer to perform cataract surgery between 6 and 12 weeks of age, but will often not implant an IOL until later in life. ये वही बात है कि आपकी सर्जरी जो है वो 6 से 12 वीक्स में हो गई है, लेकिन आप IOL इम्प्लांटेशन को पोस्टपोन करते हैं।
दिस इज अ क्रिटिकल टाइम फॉर विजुअल डेवलपमेंट एंड प्रिवेंटिंग डेप्रिवेशन एम्ब्लायोपिया. अगर आप नहीं लगाएंगे इस ड्यूरेशन में ग्लासेस या कॉन्टैक्ट लेंस तो क्या हो जाएगा? If sufficient visual correction is not obtained within this window, visual prognosis is worse. Everyone knows that visual prognosis. अब आपकी ideal AFA की contact lenses की क्या-क्या characteristics होती हैं? High plus lenses and extended sleep of infants necessitate the need for high DKT lenses. आप जब बच्चा ज़्यादातर सोता रहता है तो उसका DKT क्या होना चाहिए? मैक्सिमम आपने DKT वैल्यू देखनी है कि मैक्सिमम DKT वैल्यू कौन से लेंसेज दे रहे हैं, आपने वो वाले उनको प्रेस्क्राइब करने हैं. देन स्टीपर लेंस होता है, इसका एवरेज के ऑफ इन्फेंट्स स्टीपर देन एडल्ट एवरेज के. हायर प्लस पावर लेंसेज इन यंगर एफिकिक पेशेंट्स नीडेड ड्यू टू द शॉर्टर एक्सिल लेंथ ऑफ इन्फेंट्स एंड यंगर चिल्ड्रन. एक्सिल लेंथ जितनी शॉर्ट होगी पावर उतनी इंक्रीज होती जाएगी. स्मॉलर फिशर्स, स्मॉलर कॉन्टैक्ट लेंसेज. अब आपके पास दो ऑप्शंस है यहाँ पे, सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज और गैस परमेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज इन पीडियाट्रिक एफेकिया. तो आपकी चॉइस है, आप कौन से एडवाइस करना चाहते हैं या पेशेंट की चॉइस है. सो द एडवांटेजेस ऑफ सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज आर पोटेंशियली मोर कंफर्टेबल, इजियर टू फिट, हाई डीकेटी. एंड डिसएडवांटेजेस आर डिफिकल्ट टू इंसर्ट एंड रिमूव. आपका सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंस बच्चों में इंसर्ट और रिमूव करना मुश्किल होता है. लिमिटेड पैरामीटर्स, मोर एक्सपेंसिव. और जीपी लेंसेज के आपके एडवांटेजेस हैं, पोटेंशियली बेटर विजन, फुल कस्टमाइज कर सकते हैं आप इसको, इजियर टू इंसर्ट एंड रिमूव. और डिसएडवांटेजेस में आपके हार्डर टू फिट, पॉसिबली लेस कंफर्टेबल. शुरू में थोड़ा कम कंफर्टेबल होता है लेकिन इन लॉन्ग टर्म यूज जीपी लेंसेज आर मोर कंफर्टेबल इन सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज. दोनों में लिखा है डिफिकल्ट टू फिट, क्योंकि बच्चों में फिटिंग डिफिकल्ट होती है. आपको ज़रूरी है कि बच्चा सो रहा हो तो आप लगाते हैं, या आप उसको एनेस्थीसिया देते हैं इनिशियली लेंस फिट करने के लिए. तो उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स या उसके जो प्रोज एंड कॉन्स है वो डिफरेंट है, वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट है कि एनेस्थीसिया के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं. मैनी कंपनीज मेक सॉफ्ट लेंसेज टू अकोमोडेट पीडियाट्रिक एफेकिया सच एज ऑल ऑफ दीज. अभी तक अगर बॉश एंड लॉम आपके इधर हैं, इनका लाइक स्टॉल है, तो आप वहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं कि बॉश एंड लॉम के कॉन्टैक्ट लेंसेज, लिटरेचर में जितना मैंने सर्च किया अब तक, बॉश एंड लॉम के कॉन्टैक्ट लेंसेज हायर डीकेटी, हाईएस्ट डीकेटी के साथ आ रहे हैं, खासतौर पे जीपी लेंसेज एफेकिया के लिए. These are the parameters for soft lenses. What is the fitting process? Most infants do well with an initial lens diameter of 11.3 millimeter. Due to the relatively steep corneas in infants, the patient usually requires a steeper base curve than traditional soft contact lenses. आपका बेस कर्व ज़्यादा 7.5 या 7.7 होता है बच्चों में. Ideal fit will have 1 to 2 millimeter movement on the eye, full coverage and extension beyond the limbus, optic zone centered over the pupil. ये सारी बातें आप लोग पढ़ चुके हैं पहले भी. Slit lamp examination is quite difficult in babies or infants. So what we do is we use a 20 diopter lens to evaluate the contact lens fit. With a high decay lens, the infant should continuously wear the lens for the next 24 to 48 hours until the next appointment. आप लगा के भेजते हैं तो उसके बाद आप उसे नेक्स्ट अपॉइंटमेंट पे 24 to 48 आवर्स तक बुलाते हैं. At that next visit, evaluate the fit, perform retinoscopy, remove lens and stain the cornea to ensure there are no corneal complications. Once these steps are performed, order a lens with the appropriate power to focus at the infant's near point. आप बच्चों को उसके उनके नियर पॉइंट पे लेंस प्रिस्क्राइब करते हैं. वाई एंड हाउ जी? क्योंकि आपने उसे 6 मीटर पे तो नहीं देखना ना, बच्चे ने 6 मीटर पे तो नहीं देखना ना, आपने उसको ओवर करेक्ट करना है ताकि वो अपना जितना डिस्टेंस है नियर पॉइंट तक देख रहा है वो वहाँ तक वो देख सके. Once the fit of the contact lens is deemed acceptable, the appropriate power is needed to maximize visual development. Ideally, with infants and very young children, the goal is to provide a clear near point which requires an overcorrection of the contact lens. Same is the case with spectacles. As a general rule, you want to overplus a pediatric aphakia by this method. Generally, आप इस rule को follow कर सकते हैं, लेकिन with the passage of time आपको खुद experience हो जाता है कि आपने कितना overcorrect करना है. +3 diopter
from age 0 to 1 plus 2 diopter from age 2.50, sorry, from age 1 to 2, and 1 to 1.5 for age 2 to 3. It is critical to ensure you are not over minusing the child for proper visual development. अब आपका बच्चा 4 साल का हो गया है तो आपके पास अनदर ऑप्शन क्या है, आप उसे बाइफोकल ग्लासेस की तरफ शिफ्ट कर दें. ठीक है, कॉन्टेक्ट लेंस आपने उसको उसकी पावर का दिया और उसके बाद आपने उसे नियर एड भी ग्लासेस में दिया. एवरेज पावर नीडेड फॉर द एफेकिक आईज 0 to 12 मंथ्स में आपका बच्चा 29 to 32 डायोप्टर यूज करता है. 12 to 24 का है पेशेंट तो 20 to 26 डायोप्टर. 2 years का है तो 12 to 20 डायोप्टर्स. Our soft lenses are approved for continuous and overnight wear, but it is recommended that they should be removed at least once weekly while the child sleeps. आपने इंसर्शन रिमूवल बच्चे के सोते में करवानी होती है. अगर आप उसके पेरेंट्स से करवा रहे हैं तो उसको भी ऐसी ट्रेनिंग देनी है कि वो सो रहा है तो करें, और अगर आप खुद कर रहे हैं तो भी आप पेशेंट को बेहतर है कि सोते में करें, क्योंकि बच्चे के ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई का टोन इतना स्ट्रांग होता है वो वैसे आंख नहीं खोलेगा और आप पकड़ के ज़्यादा खींच भी नहीं सकते उसको. Soft contact lenses for aphakia should be replaced every 3 to 6 months. However, lenses may need to be changed sooner due to changes in fit or power. What about GP lenses for aphakia? Gas permeable lenses can also be used to treat aphakia. They are also imperative when parameters for soft aphakic lenses cannot match the visual needs. आपको पता है कि gas permeable lenses crisp vision देते हैं. Common concerns with gas permeable lenses in children are if the infant can tolerate the lens and if they will remain on the eye centered over the visual axis. Gas permeable lenses have great oxygen transmissibility and also offer more customizable steps in refractive power and fitting parameters. That's why these are the ideal, because they give because they give maximum oxygen permeability. However, GP lenses, if fit properly, can offer excellent potential for visual development. Typical parameters आपके वही हैं जी, इसमें भी जो soft contact lenses में थे, diameter, base curve, DKT, and be sure to always lenticulate when ordering. Rules for overcorrecting the power are the same for GP lenses as soft contact lenses. Fitting a GP for an infant can be challenging, but corneal topography measurements can help streamline the process. Whenever you are going to contact lenses, you always see the corneal topography map. Best evaluated with fluorescein and use a Burton lamp. आपने देखना क्या होता है, सेंट्रेशन देखनी है आपने, कॉन्टेक्ट लेंस वेल सेंटर्ड और नॉट, और आपने इसकी सेंट्रल क्लियरेंस देखनी है. 1 to 2 millimeter fluorescein at the edge to ensure lift is ideal. आपने एज लिफ्ट चेक करनी है, एज लिफ्ट आइडियल है या नहीं. Minimal amount of movement but not adhere to the cornea. नॉर्मली रूटीन में आपका ये वाला कॉन्टेक्ट लेंस इंफीरियरली डिसेंटर्ड होगा थोड़ा सा, बट इट इज़ नॉर्मल उस वक्त तक जब तक आपका जो ऑप्टिक जोन है वो क्लियर है और ऑप्टिक जोन को वो कवर नहीं कर रहा. Picking the correct lens. There are pros and cons to fitting soft GP lenses on an infant. Choosing the correct contact lens to fit a child requires collaboration with the provider and parents in determining what is most beneficial to the patient. This is what to expect for visual outcome. Improvement को आप predict कर सकते हैं लेकिन accurately determine नहीं कर सकते. Patients with congenital cataract commonly have other ocular complications, so they may have confound visual acuity improvement. Treatment of deprivation and amblyopia requires patching and other therapies in addition to wearing a pediatric contact lens. Any questions? Thank you so much. Next आपका लेक्चर है मिस बिनिश लतीफ़ के साथ. मिस बिनिश प्लीज.
Assalamu alaikum to all of you. Today I will talk about the contact lenses and classification of contact lenses. First of all, what is contact lens? Contact lens is an artificial optical device whose front surface substitute the interior surface of the cornea. एक्चुअली ये टॉपिक जो सा था पहले स्टार्ट इंट्रोडक्शन जो था लेंसेज का वो बाद में हो रहा है और पहले आपने थोड़ा एडवांस पढ़ लिया तो इसलिए मैं आपको पहले स्टार्ट का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ कि लेंसेज जो है वो कॉन्टैक्ट लेंस बेसिकली होता क्या है। तो ये डिवाइस या इसको हम कहेंगे यहाँ आर्टिफिशियल जो कि आपकी लेंस की कॉर्निया की इंटीरियर सरफेस पे लगाया जाता है एंड मेनली द यूजेस ऑफ द कॉन्टैक्ट लेंस इज यूज्ड एज अ करेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर्स and to change the color of the eye and therapeutic purposes. There are different classification of the contact lenses and these lenses can be classified according to their anatomical position and anatomical position mein lenses can be classified as scleral contact lenses, semi-scleral contact lenses and corneal contact lenses. Further, these are divided according to their diameter. Corneoscleral contact lenses have a diameter of 12.9 to 13.5 millimeter, and the scleral lenses with maximum diameter they have 18.1 to 24. And further, they can be mini-scleral, semi-scleral, and full scleral. Full scleral are cover the entire surface of the sclera. And according to the nature of the material, contact lenses can be divided into hard contact lenses, soft contact lenses. Hard is further as gas permeable lenses. Another type is hybrid lenses. In hybrid lenses, the soft and the hard is mixed part. Just look at this. In hybrid lenses, the center part of the lens will be hard and the peripheral will be soft, and this is for the better comfort of the patient. Further, soft lenses, these are basically soft in nature, and most commonly used contact lenses are soft contact lenses, and they range from the hydrogels to plastic material containing water. Diameter is normally larger than the cornea, 1 to 2 millimeter larger than the cornea, and easy to adopt. Rigid gas permeable lenses, these lenses are small in size. Usually its diameter is less than 1 to 2 millimeter from the diameter of the cornea, and the material is hard, mainly gas permeable, and less comfortable than soft lenses, and initially very effective in correcting the astigmatism. These are lenses used for the correction of astigmatism and the high refractive errors. Another classification is according to their water content. FDA classification hai, in which lenses are divided into 4 types. That is, group 1 is low water content and non-ionic, high water content, non-ionic, and group 3 is the low water content, ionic, and high water content and ionic. According to the wearing modality, lenses can be divided into daily wear, extended wear, and disposable lenses. And daily wear lenses are those lenses which are disposable and can be used for one day. You use or open the lens in the morning and dispose of at the night. Requires less care is less required in these lenses, and high water content according to material. Monthly disposable lenses, these lenses can be disposed of after a month. Basically, these lenses you can use for 1 month, and after that the lenses will be discarded. Annually disposable contact lenses can be used for 1 year, and their duration can be used for this can be of 6 months and on annual basis. Another classification is according to their color. Contact lenses can be transparent and can be in colored form. Tinted lenses also are type, and these lenses are used to change the eye color or change the appearance of the eye.
Refractive classification lenses can be divided into spherical, toric, and bifocal. I will only talk little on these lenses. Spherical lenses, as a description or as a name show, uh, have power all around the lens in same in meridian. In same meridian, power will be the same. Usually used when the cylindrical correction is less. Is minus if the cylinder is less than 0.75, then you can use the spherical contact lenses. Aspheric lenses, the curvature of the lenses changes from horizontal and vertically, or the design is of aspheric. Toric soft contact lenses are used when the power of the cylinder is greater than 0.75. For the toric contact lenses, there is the axis marking on the toric lens, and you have to stabilize the lens on the cornea. So there will be some physical factor, or can be a prism in the lower portion which is used to stabilize the lens on the cornea. Other lenses are the multifocal contact lenses, and these lenses are used for distance and near vision. And there are many options for the bifocal, just like monovision, bifocal, and modified monovision, concentric ring multifocal, simultaneously viewing multifocal. In monovision contact lenses, one eye is used for the distance vision and the other eye is used for the near vision. And normally non-dominant eye will be used for the near vision, and dominant eye gives the correction of distance vision. A simple design of near center focal point lens. The center of the lens was corrected for near, and the other part of the lens was corrected for the distance. These are the different designs of the bifocal contact lenses in with the concentric circle. These concentric circles, the distance center of the lens has distance vision, and then near vision again distance. And the advantage of this, a person can see both the distance vision and the near vision from a single lens. And in aspheric design, the center portion of the lens will be for near, and the peripheral portion of the lens for the distance vision. And translating in just like a bifocal, the half of the lens will for the distance and the lower portion for the near. This is the little bit of the classification of the contact lenses. And now the next is the indications and contraindications of the contact lenses. Next. Contact lenses are a changing area of the optometry, with new lenses being constantly developed. This is just a flow chart to show the different types of the lenses, which I already told you. And first, why we can use the contact lenses. First of all, the contact lenses move with your eyes. There is no prismatic effect with the contact lenses because the lenses move with the eye. So the vision is more natural, and field of view is more natural with the contact lenses. Another advantage is no frame to obstruct your vision. Some people feel difficulty when they see look from the side of the frame, and distortions will be reduced because lenses move with the eyes and do not fog up or get splattered by mud or rain. This can be in some circumstances or occupations. And excellent for sports and physical activity, and appearance of the will be better with the use of contact lenses.
indications of contact lenses can be further divided into different categories. Just for one of the main is optical indication. And optical indications, contact lenses can be used for the correction of refractive errors like myopia, hyperopia, stigmatism, presbyopia, keratoconus, and the other options are amblyopia, anisometropia, unilateral aphakia, and in case of diplopia. Therapeutic indications of the contact lenses are non-healing corneal ulcers, recurrent corneal erosions, bullous keratopathy, filamentary keratitis, and in the iris diseases, these are aniridia, coloboma, and the albinism. Other indications of the lenses are post-surgery, Bell's palsy, bleb leak, post-trabeculectomy, lid abnormalities, epithelial healing, and ptosis. In preventive indications, symblepharon and restoration of furnaces, chemical burns, and exposure keratitis. These lenses can be used as a preventive measures, and in accidents are in trauma burn cases of. And occupational indications are sportsmen, pilots, actors, and protection from steam or spray. In some occupation, lenses can also be indicated for this reason. Contraindication of the contact lenses are ocular pathologies in which lenses cannot be advised, are interior segment inflammation or infections, chronic ocular allergy, keratitis, blepharitis or conjunctivitis, tyre-Clasion, scleritis, iritis, endothelial dystrophies, corneal hyposensitivity, chronic dry eyes, and poor quality of the tear film. There are some systemic diseases in which lenses cannot be recommended, just like diabetes and arthritis, and in allergy or asthma, there are also lenses cannot be used. Other contraindications are smoky, dusty environment, chemical fumes or irritant, high altitude flares, construction workers or automobile mechanics. Next is the care of the contact lenses. Wash your hands with soap. Always when we use contact lenses, then we wash our hands and dry them with lint-free towel. Lint-free towel is used because the fabric lint can be on the hands, and that can deposit on the lens. Hand must not have any moisturizer, lotion or cream. For the care of the lenses, you always put the lenses first, insert the lenses, and after that you can apply these things as makeup. Use the fingertips to handle the lenses, but since long nails harbor germs, it is better to keep them short and filed neatly. Every day when you get free, contact lenses should be removed and rest your eyes at the night. Although if the lenses are is a type of extended wear, but it is recommended that you remove the lens at the night, and the next day you insert the lens again. No lens or part of the lens should be exposed, for that may cause contamination. After removing the lens should be properly stored in their case and solution in proper wetting solution. These are some of the facts for the contact lenses according to American Optometric Association, and this shows the different behaviors or practices of the person with the contact lenses. Thank you to all of you. Now I would like to invite Mr. Anwar Wan. Please come and continue the. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. जी
My first lecture will be on preliminary contact lens assessment. जी, इसमें प्राइमरीली हमने जो पहला हमारा टास्क है, इसमें हमारा गोल ये होगा कि एट द एंड ऑफ दिस टॉक आप लोग अपने आप को फेमिलराइज कर लें कि हमने कॉन्टैक्ट लेंस असेसमेंट के कौन कौन से स्टेप्स हैं और कौन कौन से ऐसी बेसलाइन मेजरमेंट्स हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं इन ऑर्डर टू प्रॉपरली फिट पेशेंट्स और ड्रॉप आउट कॉर्नियल ड्रॉप आउट केसेस को मिनिमाइज़ करने के लिए हमें कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जिनको ज़रूर असेस करना है. तो स्टार्ट करते हैं. अच्छा, अब यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कॉन्टैक्ट लेंस असेसमेंट में इम्पोर्टेंट है वो है हमारा रूटीन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन. बिफोर प्रोसीडिंग विद दी कॉन्टैक्ट लेंस बेस साइज मेजरमेंट्स वी विल मेक श्योर कि जो कॉन्टैक्ट लेंसेज असेस करने से पहले हमने देखना है कि आई में कोई भी मेजर ऑकुलर एबनॉर्मेलिटी ना हो या कोई डिजीज़ प्रोसेस ना चल रहा हो. कोई एक्टिव डिजीज़ प्रोसेस चल रहा है तो उसको हमने पहले रूल आउट करना है और उसको हमने फिगर आउट करना है, जिसके बाद हम आगे कॉन्टैक्ट लेंस असेसमेंट की तरफ फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम जैसे देखेंगे रूटीन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन शुड बी डन फॉर ईच पेशेंट्स बिफोर फिटिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज. द पर्पस ऑफ डूइंग दिस इज टू डिटर्मिन इफ द कॉन्टैक्ट लेंसेज आर इंडिकेटेड और कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्लस मेजर एंड रिकॉर्ड बेसिक पैरामीटर्स फॉर फिटिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज. इसमें फिर दोबारा मैं यही बात बताऊंगा कि अगर कॉन्टैक्ट लेंसेज नॉर्मल रूटीन में हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में प्रैक्टिस चल रही है कि पेशेंट्स रिफ्रैक्शन करवाते हैं और फिर मार्केट से जाके ओवर द काउंटर कॉन्टैक्ट लेंसेज परचेज कर लेते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ कॉन्टैक्ट लेंसेज जो कि परचेज किए जा रहे हैं मार्केट से उनमें जो FDA अप्रूव्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं जिन वो बहुत कम यूज़ हो रहे हैं. FDA से मुराद बेसिकली फूड एंड ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है हमारी. तो वो बेसिकली जो लेंसेज वहाँ से अप्रूव होते हैं उनका पूरा रिसर्च बैकग्राउंड होता है. उन्होंने तमाम बेसिक जो कॉन्टैक्ट लेंस की ऑकुलर हेल्थ पैरामीटर्स हैं उसके मुताबिक रिसर्च करने के बाद अपने लेंसेज बनाए गए होते हैं. तो अगर नॉर्मली अगर हम इन पैरामीटर्स के मुताबिक लेंसेज परचेज नहीं करते या जो ब्रांडेड कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं जिनमें क्वालिटी अच्छी है, जिनका रिसर्च वर्क अच्छा है, अगर वो हम यूज़ नहीं कराते तो डेफिनेटली कॉन्टैक्ट लेंस कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा अराइज हो सकती हैं और ड्रॉप आउट केसेस भी हमारे बढ़ सकते हैं. और उसके अलावा ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं जिनमें सीवियर विजन लॉस के साथ भी पेशेंट बाद में प्रेजेंट हुए हैं. तो ये अच्छा, इसमें कॉन्टैक्ट लेंस असेसमेंट में सबसे फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ टू हैव अ डिटेल्ड हिस्ट्री में दोनों जो ऑकुलर हिस्ट्री है, जनरल हिस्ट्री है और आपकी कॉन्टैक्ट लेंस की हिस्ट्री, वो सारी इंपॉर्टेंट है. आपकी जो सिस्टमिक हिस्ट्री, कोई डिजीज़ प्रोसेस तो नहीं चल रहा, जिस तरह के आगे हम स्लाइड्स में देखेंगे डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है और आर्थराइटिस है. ऐसी डिजीज़ चूँकि सिस्टमिक होती हैं तो उनके इफेक्ट्स आई में भी आ जाते हैं. तो वो जो हमारा नॉर्मल कॉर्नियल जो इंटेग्रिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं. तो हमने उनको एड्रेस भी करना है और मेक श्योर करना है कि अगर ऐसे केसेस जिनको कोई सिस्टमिक डिजीज़ है तो हम उनके लिए स्पेसिफिक टेलर मेड लेंसेज बनाएं ताकि उनको कोई इश्यूज़ ना हो. उसके अलावा ऑकुलर हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है. प्रीवियसली अगर फर्ज करें कोई सर्जरी हुई है, अगर कोई इससे पहले वो कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कर रहे हैं, उन कॉन्टैक्ट लेंस में उनका सक्सेस रेट कैसा है, क्या वो उनसे कंफर्टेबल हैं या कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो तमाम चीज़ें हमने नोट डाउन करनी है सो दैट हम अगली नेक्स्ट जो हमारे कॉन्टैक्ट लेंस जो हम उनको एडवाइस करने लगे हैं हम प्रीवियस जो इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस कर सकें प्रॉपरली. यहाँ पर कुछ सिस्टमिक डिजीज़ बताई हुई हैं जो कि हमारे जहन में होनी चाहिए बिफोर गोइंग फॉर कॉन्टैक्ट लेंस असेसमेंट, जिसमें डायबिटीज़ है, हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी है, एलर्जीज़ हैं, आर्थराइटिस है, साइनोसाइटिस है. ये तमाम यूज़र्स हैं उनको इश्यूज़ क्रिएट कर सकते हैं. अब इसके बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ऑक्यूपेशन और एनवायरनमेंट हिस्ट्री. जिस तरह मैडम ने पहले बताया, फॉर एग्जांपल हम यहाँ देख लेते हैं कि पेशेंट्स एंगेज इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ नीड वेरी शार्प विजन. तो अब अगर जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में एंगेज हैं तो हमें ऐसे लेंसेज देने होंगे जो ज़्यादा मूव ना करें आई पे. तो हम जानते हैं कि कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है उनकी मूवमेंट सबसे मिनिमल होती है, तो वो अपनी एक्टिविटीज़ को इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे. इसी तरीके से जो डस्टी और डर्टी इन्वायरमेंट है, अगर वहाँ पे हम RGB लेंसेज यूटिलाइज़ कराते हैं
तो उसमें इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि डस्ट पार्टिकल्स लेंस और कॉर्निया के दरमियान अगर पहुंच जाएं तो वो आगे प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, कॉर्नियल एब्रेजन्स कॉज कर सकते हैं और एबनॉर्मलिटीज कॉज कर सकते हैं। और उसके अलावा वो लोग जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं उनको लेंसेज के साथ बर्निंग या स्टिंगिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो उसके लिए हमें अप्रोप्रिएट लेंसेज उन यूज़र्स के लिए टेलर मेड यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल ऐसे लोग जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारे स्क्लेरल लेंसेज हैं वो उनके लिए यूज़ किए जा सकते हैं, बिकॉज they are basically placed on the sclera, they cover the whole of the cornea, so they may be most useful for those patients. तो बेसिकली हमारे पास जो कॉन्टैक्ट लेंस जो आपने क्लासिफिकेशन पहले पढ़ी उसमें हमने देखना है कि हमारे जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी जो हमने हिस्ट्री ली, डिटेल्ड हिस्ट्री, ऑकुलर सिस्टेमिक हिस्ट्री और उनकी प्रीवियस कॉन्टैक्ट लेंस हिस्ट्री, उसको देखते हुए आगे हमने मैनेज करना है कि हम उस इन्वेंट्री में से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट लेंस टाइप है वो अपने पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब कर सकें। और इसमें जो नेक्स्ट हिस्ट्री टेकिंग के बाद इंपॉर्टेंट स्टेप है वो हमने ऑब्वियसली विजुअल फंक्शन असेसमेंट करनी है और डिटेल्ड रिफ्रैक्शन करनी है। आप लोग सब इन प्रोसेस से अच्छे तरीके से फेमिलराइज हैं, तो हम आगे मूव करेंगे। इसमें हमारा ऑकुलर हेल्थ एग्जामिनेशन आ गया, जिसमें हमने आईलिड्स, कॉन्जंक्टिवा और कॉर्निया, आयरस, टीयर्स एंड स्क्लेरा, इन सब को रूल आउट करना है और तमाम एबनॉर्मलिटीज़ इनको हमने रूल आउट करना है। अगर हैं तो उनको पहले ठीक करके फिर हम कॉन्टैक्ट लेंस असेसमेंट की तरफ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ये है CCLRU, कॉर्निया एंड कॉन्टैक्ट लेंस रिसर्च यूनिट ग्रेडिंग सिस्टम है। ये बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के ऑप्टोमेट्री डिपार्टमेंट की तरफ से डिवाइस किया गया, और इसका सबसे अच्छी बात यह है कि हम जो पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं उनमें इस ग्रेडिंग सिस्टम के थ्रू अपने पेशेंट्स की ऑकुलर हेल्थ को ग्रेड कर सकते हैं बिफोर प्रोसीडिंग फॉर कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम देख सकते हैं बल्बर रेडनेस है तो सबसे ज़्यादा स्टेज 1 में है और मैक्सिमम स्टेज 4 में है। इसी तरीके से लिम्बल रेडनेस है, लिम्बल लिड रेडनेस है और लिड रफनेस है। तो ऐसे केसेस जो स्टेज 4 में हमारे फॉल कर रहे हैं उनको बेसिकली हम कोशिश करेंगे उनको हम पहले स्टेज 1 में लेकर आएँ और नेक्स्ट हम उनको प्रोसीड करें कॉन्टैक्ट लेंस असेसमेंट के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ये कॉन्टैक्ट लेंसेज असेस करने से पहले हम फ्लोरेसेंट पैटर्न में ऑकुलर हेल्थ एग्जामिनेशन कर लेंगे और देखेंगे यहाँ पर क्या सिचुएशन आ रही है। तो यहाँ पे भी जो स्टेज 4 कैटेगरी के पेशेंट्स हैं उनको हम बेसिकली उनकी जो मेन कॉर्नियल या ऑकुलर हेल्थ एलिमेंट्स हैं उनको पहले हम कोशिश करेंगे कि उनको रेक्टिफाई करके स्टेज 1 में लाएं और उसके बाद हम कॉन्टैक्ट लेंस असेसमेंट के लिए फर्दर प्रोसीड करें। ये अब तक मेन जो हमारा हो गया। उसके बाद हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं, जिस तरह हम सब जानते हैं कि हम सबकी हाइट, वेट, सबका डिफरेंस होता है, इसी तरीके से हमारे जो कॉर्नियल पैरामीटर्स हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करते हैं। इस एतबार से अगर हमने टेलर मेड कॉन्टैक्ट लेंसेज पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करने हैं तो हमें कुछ बेसिक पैरामीटर्स को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। नॉर्मली इस वक्त तक जो हम ऑब्जर्व करते हैं मार्केट में प्रैक्टिस है कि आप ऐना का नंबर लें, उसके एतबार से आप कॉन्टैक्ट लेंस का नंबर ले लें, मार्केट से आप लगा लें, कोई बेस लाइन मेजरमेंट्स नहीं हो रही। तो हमने एज कॉन्टैक्ट लेंस प्रैक्टिशनर्स हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इन बेस लाइन पैरामीटर्स को असेस करने के बाद कॉन्टैक्ट लेंस के लिए प्रोसीड करें। तो इसमें कॉर्नियल कर्वेचर है, हम जानते हैं कि बेस कब, वहाँ से अगर हमने फाइंड आउट करना है तो सेंट्रल कॉर्नियल कर्वेचर हम विद द हेल्प ऑफ कैरोमीटर और कॉर्नियल स्कैन्स हमें फाइंड आउट हो जाएगा। उसके बाद कॉर्नियल डायामीटर, हमें कितने डायमीटर का लेंस पेशेंट को यूज़ कराना है वो हम पेशेंट का एक्चुअल डायमीटर मेजर कर लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लेंस प्रिस्क्राइब करेंगे। अगर वो सॉफ्ट लेंस यूज़ करें तो डेफिनेटली वो कॉर्निया से बड़ा होगा, और अगर हार्ड लेंसेज यूज़ करें RGPs तो वो छोटे होंगे, लेकिन अगर हम स्क्लेरल लेंसेज की तरफ जाएँ तो डेफिनेटली वो इससे बड़े होंगे। इसी तरीके से प्यूपिल साइज़ मेजर करना स्पेशली डिम लाइट में और नॉर्मल रूम लाइट इल्यूमिनेशन में बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर डिम पेशेंट कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कर रहा है, उसका ऑप्टिक जोन डायमीटर छोटा है, डिम लाइट में उसको ग्लेयर के इफेक्ट इश्यूज आ सकते हैं। तो नॉर्मली डिम लाइट में जो प्यूपिल साइज़ का मिलीमीटर आए उससे हम 2 मिलीमीटर बड़ा ऑप्टिक जोन रखते हैं, सो दैट दे डोंट फील एनी डिफिकल्टी एट नाइट व्हेन द प्यूपिल इज डायलेटेड। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमारी पैल्पेब्रल अपर्चर हाइट, नॉर्मल रूटीन में हम जो देख रहे हैं तो जितना हमारा आईबॉल साइज नज़र आ रहा है ये हमारी टोटल हाइट है, जिसको हम विद द हेल्प ऑफ मिलीमीटर रूलर मेजर कर सकते हैं। आगे पिक्चर्स में मैं शो भी करूंगा, तो वो हम मेजर कर लेते हैं। अगर लेट्स से कि लेंस का साइज़ छोटा है और पैल्पेब्रल फिशर हाइट वो ज़्यादा है तो लेंस के गिरने के चांसेस हैं, तो इसलिए हमें वो चीज़ें भी अरेस्ट करनी है। और उसके बाद डिटेल्ड टीयर फिल्म असेसमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पेशेंट्स हैं जिनको ड्राई आइज़ के इश्यूज़ हैं तो उनको हमें पहले देखना पड़ेगा। अदरवाइज़ ऐसे केसेस में जहाँ पे हम ड्राई आइज़ के इशू को प्रॉपर रिजॉल्व नहीं कर सकते तो हमारे पास स्पेशलाइज्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं जो हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये हम यहाँ पे शो किया गया है यहाँ इस स्लाइड में,
पॉइंटर दे दीजिएगा। ये हॉरिजॉन्टल विजिबल आइरिस डायमीटर मेजर कर रहे हैं यहाँ पे हम, और यहाँ पे पैल्पेबल फिशर हाइट मेजर की जा रही है। नेक्स्ट जो है ये टीयर फिल्म असेसमेंट है, जिसमें शिमर टेस्ट और नॉन इन्वेसिव और इन्वेसिव दोनों टेक्निक्स हैं। नॉन इन्वेसिव से मुराद कि हम कोई भी एडिशनल फॉर एग्जांपल शिमर टेस्ट स्ट्रिप्स यूज़ नहीं कर रहे, फिनोल थ्रेड टेस्ट यूज़ नहीं कर रहे, हम बगैर कोई आई में चीज़ इंस्टिल किए कॉर्निया के ऊपर जो टीयर फिल्म मौजूद है उसको असेस करें विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल स्लिट लैंप। हम स्लिट लैंप एग्जामिनेशन में देख सकते हैं कॉर्निया की टीयर फिल्म जो है वो कैसी है। और अगर फर्ज करें हम उसको क्वांटिफाई करना चाह रहे हैं, देन वी कैन गो फॉर द इन्वेसिव टेस्ट लाइक शिमर टेस्ट और फिनोल रेड टेस्ट, जिनसे हम मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शिमर टेस्ट में नॉर्मल स्ट्रिप की जो साइज़ होता है वो 35 मिलीमीटर्स है, तो अगर वो 15 मिलीमीटर्स तक विद इन 5 मिनट्स वो वेट हो जाए, इट मीन्स कि टीयर्स नॉर्मल है। अगर फ़र्ज़ करें वो लेस देन 5 है तो ऑब्वियसली वो ड्राई आइज़ हैं। ऐसे केसेस में हमें वी हैव टू बी केयरफुल बाय प्रिस्क्राइबिंग कॉन्टैक्ट लेंसेज। लाइकवाइज फिनोल रेड थ्रेड टेस्ट भी ऐसे ही टेस्ट है, जिसमें एक येलो थ्रेड होगी जिसको हम लोअर लिड में प्लेस करेंगे और देखेंगे कि 5 मिनट में कितनी ज़्यादा वो वेट हो जाती है, और वेट होने का साइन ये होगा कि वो रेड हो जाएगी। जितनी ज़्यादा रेड होगी इसका मतलब है कि उतने अच्छे हमारे टीयर्स हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारी जो ये हमारे 3 बेसिक पैरामीटर्स हैं जिनके बगैर हमें कॉन्टैक्ट लेंसेज कभी भी प्रिस्क्राइब नहीं करने चाहिए, जिसमें हमारा बेस कर्व ऑफ द लेंस है, कॉर्नियल डायमीटर हम असेस करके कॉन्टैक्ट लेंस डायमीटर फाइंड आउट करते हैं, और फिर उसके बाद जो हमारा कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्रिप्शन पावर है वो हमने फाइंड आउट करनी है। इन केस अगर पेशेंट्स की प्रिस्क्रिप्शन +-4 से ज़्यादा है तो हमें इफेक्टिव पावर ऑफ द लेंस फाइंड आउट करने के लिए कॉन्टैक्ट लेंस फार्मूलाज अवेलेबल हैं जिनसे हम एग्जैक्ट पावर फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके अलावा जब ये सब पैरामीटर्स हमने फाइंड आउट कर लिए तो हम इस पोजीशन में होते हैं कि कौन सा टाइप ऑफ लेंस हम प्रिस्क्राइब करें, और उसके बाद नेक्स्ट वी कैन प्रोसीड विद द कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग। कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग हमें एट द एंड पेशेंट को गाइड करना पड़ेगा कि इंसर्शन रिमूवल टेक्निक्स बतानी पड़ेंगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हमें उनको इंस्ट्रक्शंस बतानी पड़ेंगी कि आपने इसको कितनी देर यूज़ करना है, कितने अरसे के लिए यूज़ करना है। जैसे मैडम ने बताया था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज अवेलेबल हैं, डेली डिस्पोजेबल भी हैं, आप सुबह लगाएं शाम को उतार के आप उनको डिस्कार्ड कर सकते हैं। इसके अलावा मंथली डिस्पोजेबल भी हैं जो आप 1 महीने के लिए इस्तेमाल करें, उसके बाद आप उनको चेंज कर लें। इसी तरीके से आपके पास 3 मंथली और 1 ईयर डिस्पोजेबल लेंसेज भी हैं। तो आइडियली हमने देखना है पेशेंट एक्टिविटीज़ को, उसके मुताबिक हम उनको उनके कॉन्टैक्ट लेंस प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। उसके बाद हमें फॉलोअप्स को भी जहन में रखना है। डिफरेंट टाइप्स के लिए हमें अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लेंस फॉलोअप्स एडवाइस करने पड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो काइंडली। आई होप द लेक्चर वाज नॉट बोरिंग। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, फिक्र न करें, इट विल नॉट लास्ट टू लॉन्ग। हमने बेसिकली स्पेशल पर्पस कॉन्टैक्ट लेंसेज के हवाले से बात करनी है। जी 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 लेंसेज क्या होते हैं? Special purpose contact lenses are designed for patients who have corneal abnormalities or other eye issues like dry eyes. Corneal abnormalities में जैसे keratoconus है, irregular astigmatisms हैं, या other eye elements में जिस तरह हमने बताया dry eye disease है। अब जो रूटीन में conventional lenses जो हमने डिस्कस किया, contact lenses are normally used in 80% of the cases, लेकिन उन तमाम पेशेंट्स में नॉर्मली कॉर्निया या तो स्फेरिकल है या उनका रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है, जो कि विद स्पेक्टिकल्स भी रेक्टिफाई किया जा सकता है और विद कन्वेंशनल कॉन्टैक्ट लेंसेज भी यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा हमारे पास एक मेजर बल्क ऑफ पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि कन्वेंशनल कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ कंफर्टेबल कभी भी नहीं होते और ना ही अपनी ग्लासेस से कंफर्टेबल होते हैं। तो उनके लिए उनकी जो विजुअल डिमांड्स को केटर करने के लिए हमें फिर स्पेशलिटी कॉन्टैक्ट लेंसेज की तरफ मूव करना पड़ता है। तो कौन कौन से मेजर हमारे पास स्पेशलिटी कॉन्टैक्ट लेंसेज अवेलेबल हैं, हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो हमारे पास कॉन्टैक्ट लेंस है वो रिजिड गैस परमेबल लेंसेज है। यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि जो ओवरऑल आज तक रिसर्च पेपर्स बता रहे हैं, मैक्सिमम कॉन्टैक्ट लेंस कॉम्प्लिकेशंस जो अराइज होती हैं वो सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज के साथ इश्यूज ज़्यादा आते हैं, बिकॉज सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज में कॉन्टैक्ट लेंस में वाटर कंटेंट ज़्यादा है, उनमें छोटे छोटे पोर्स हैं जिनमें टीयर्स के लिपिड्स और जो एंजाइम्स हैं, डिफरेंट मटेरियल्स जो इम्बाइब कर जाते हैं, जो कि फर्दर कॉन्टैक्ट लेंस कॉन्टेमिनेशन और इन्फेक्शंस कॉज करते हैं। एज फार एज दीज स्पेशलाइज कॉन्टैक्ट लेंसेज जो RGP लेंसेज हैं, यहाँ पे कॉन्टेमिनेशन के चांसेस
रिलेटिवली कम हो जाते हैं एज दे आर हार्ड प्लस दे आर ईजी टू मैनेज। इनकी कॉन्टैक्ट लेंस आफ्टर के रिजीम रिलेटिवली ईजी है। तो नॉर्मली जो रिजिड गैस परमिएबल लेंसेज हैं ये 8 से 9.5 मिलीमीटर तक होते हैं। मींस ये हमारे नॉर्मल कॉर्निया जो कि 11 to 12 मिलीमीटर है उससे छोटे होते हैं और इनकी अच्छी ऑक्सीजन परमेबिलिटी है और इरेगुलर कॉर्नियाज को ये अच्छे तरीके से हम इनको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा केराटोकोनस के पेशेंट्स को और नॉर्मल पेशेंट्स जिनका एस्टिग्मेटिज्म 4 डायप्टर्स या उससे कम है उनको भी हम इजीली इससे मैनेज किया जा सकता है हमारा। ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें हम राइट साइड पे देख रहे हैं कि कॉर्नियल से आरजीपी कॉन्टैक्ट लेंसेज कम हैं और ये रिलेटिवली कॉन्टैक्ट लेंस फिटिंग दिखाई गई है। दूसरी स्लाइड में आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्लैरल कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, ये हाइब्रिड लेंसेज हैं। नॉर्मली आपको ये पता होगा कि सॉफ्ट लेंस का ब्रेक इन पीरियड या जो कॉन्टैक्ट लेंस अडेप्टेबिलिटी पीरियड जो है वो नॉर्मली सॉफ्ट लेंसेज का ज़्यादा बेहतर है। आप जल्दी अडेप्ट कर जाते हैं कॉन्टैक्ट लेंस सॉफ्ट लेंसेज के साथ, लेकिन हार्ड लेंसेज को अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो बहरहाल ये इसका थोड़ा सा एक डिमेरिट है, लेकिन अगर आप पहले 5 या 6 दिन में अडेप्ट कर जाएं तो इनकी जो विजुअल आउटकम और पोस्ट कॉर्नियल कॉन्टैक्ट लेंस यूजेज केयर जो है वो रिलेटिवली ईजी हो जाती है। तो जो स्क्लेरल लेंसेज हैं इनका डायमीटर सबसे बड़ा है, उसके बाद हमारे पास हाइब्रिड लेंसेज आ जाते हैं और आरजीपीज डेफिनेटली इनका जो डाया है वो छोटा है। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में भी यही दिखाया गया है। यहाँ पे अब नेक्स्ट जो हमारे पास स्पेशलिटी कॉन्टैक्ट लेंस है वो स्क्लेरल लेंसेज। ऐसे पेशेंट्स जिनकी आई में कोई अबनॉर्मलिटी है, फॉर एग्जांपल सीवियर ड्राई आई के केसेस हैं, तो या उनका प्रॉपर आई लिड क्लोज नहीं होता तो इसकी वजह से ड्राई होने के चांसेस ज़्यादा हैं, या स्पेशल ऑक्यूपेशन है जैसा मैंने बताया केमिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, या इवन टॉम क्रूज़ की एक मूवी है जिसमें उन्होंने जहाज़ से बाहर निकलना है तो वो इतने तेज़ हवा होती है कि नॉर्मली अगर वो देखते तो कॉर्निया डैमेज हो जाता है। उनको स्क्लेरल लेंसेज पहनाए गए थे। उसके अलावा क्रेटोप्लास्टी, कॉर्निया पूरे का पूरा ट्रांसप्लांट हो जाए तो आपको पता है कि स्टिचेस पूरे 360 डायल पे लगते हैं जो कि इंतहाई नॉर्मली इरिटेटिंग होते हैं। तो ऐसे केसेस में जो आरजीपी लेंसेज हैं दे आर प्लेस्ड ऑन द स्क्लेरा, दे बेसिकली वोल्ट द कॉर्निया, पूरे के पूरे कॉर्निया को वो बाईपास कर जाते हैं एंड दे आर फिल्ड विद टीयर्स लिक्विड जो कि डेफिनेटली प्रिजर्वेटिव फ्री होगा, तो वो कॉर्निया की ओवरऑल हेल्थ के लिए भी बेहतर है और उसकी हीलिंग प्रोसेस को भी ऑगमेंट करेगा और पेशेंट विल हैव गुड विजुअल आउटकम। एक पेशेंट हैं जो लास्ट टाइम हमारे पास असेसमेंट के लिए आए थे, वो बेसिक चीफ जस्टिस, उनकी क्रेटोप्लास्टी हुई थी, पूरे का पूरा कॉर्निया चेंज हुआ था। अब ऐसे केसेस फॉर एग्जांपल उनकी इतनी स्ट्रॉन्ग इतनी ज़बरदस्त विजुअल डिमांड्स हैं, अगर ये लेंसेज यूज़ कर लिए जाए तो दे माइट अटेन नॉर्मल विजन विद दीज लेंसेज। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट और जितनी भी कॉर्नियल एब्नॉर्मलिटीज़ हैं जिसमें क्रेटोग्लोबस आ जाता है, पैलिसिड मार्जिनल डिजेनरेशंस हैं, उन तमाम में ये एक आइडियल कॉन्टैक्ट लेंस है जो कि यूज़ किया जा सकता है। और इसके अलावा ये हम यहाँ पे एक और पिक्चर में देखेंगे, देखें कॉर्निया रेगुलर नहीं है, इरेगुलरिटीज़ हैं। सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज इस इशू को रिजॉल्व नहीं कर सकते। नॉर्मल जो आरजीबी लेंसेज हैं जो कि कॉर्निया से छोटे हैं डेफिनेटली वो भी इस इशू को इजीली रिजॉल्व नहीं कर सकेंगे। दे विल डिसलॉज, दे विल मूव अप और डाउन, विल नॉट बी एबल टू मैनेज दोज केसेस। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि ये दूसरी पिक्चर में कैसे स्क्लेरल लेंस पूरे के पूरे आई बॉल को कवर कर रहे हैं एंड डेफिनेटली दे आर अ न्यू रिफ्रैक्टिंग मीडियम विच इज़ रेगुलर एंड क्रिस्प विजन कैन बी अटेन्ड विद दीज लेंसेज। नेक्स्ट जो स्पेशलिटी लेंस है जिस पे हम डिस्कस करना चाहेंगे ऑर्थोकेरेटोलॉजी। ऑर्थोकेरेटोलॉजी लेंसेज के मल्टीपल यूजेस हैं। प्राइमरीली दे आर वॉर्न ओवरनाइट और नेक्स्ट डे आप विदाउट ग्लास एंड कॉन्टैक्ट लेंसेज नॉर्मल इंडिविजुअल्स पूरा डे स्पेंड कर सकते हैं। लेकिन इनकी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस हैं इन मायोपिया मैनेजमेंट। हम जानते हैं कि अगर किसी बच्चे को नॉर्मल रूटीन में अराउंड 6 से 8 साल की उम्र में मायोपिया डेवलप होना स्टार्ट हो जाए, अराउंड 1 to 2 हो और उनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री भी हो हाई मायोपिया की, तो ग्रेजुअली बाय द टाइम दे विल रीच द एज ऑफ 20 तो उनका कम से कम 8 से 10 डायप्टर्स या इससे भी ज़्यादा का मायोपिया होगा। और विद हाई मायोपिया ग्लोकोमा, रेटिनल डिटैचमेंट और मल्टीपल मैकुलर डिजेनरेशन सिंड्रोम स्टार्ट हो जाएंगे और वो बाय द एज ऑफ अराउंड 40 to 50 वो दे माइट गेट ब्लाइंड। तो इन तमाम इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए ऑर्थो के लेंसेज का बड़ा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन बनता है कि ऐसे पेशेंट्स को हम नॉर्मली जो प्रोसेस क्या है कि अगर स्ट्रीप कॉर्निया है लेंस को प्लेस किया जाता है। इनकी बेसिकली रिवर्स ज्योमेट्री है। रिवर्स ज्योमेट्री से मुराद ये है कि दे आर फ्लैट इन द सेंटर, तो ये कॉर्निया को फ्लैट कर देंगे और जहाँ पे कॉर्निया फ्लैट है उसको स्टीप करेंगे, यहाँ पे गैप है तो यहाँ से वो बल्ज आउट करेगा। तो जब इन लेंसेज को सुबह उतारा जाता है तो ये कॉर्निया रिलेटिवली फ्लैट हुआ होगा, तो पूरा दिन
आप नॉर्मल विजन अचीव कर सकते हैं। और तकरीबन 20 to 30% एक पेशेंट जिसने फ्यूचर में जाके अराउंड 10, 12, 15 डायप्टर्स का मायोपिया उसको होना था, उसको अब कम करके अराउंड -5 to 7 अगर लेट से अचीव कर लेते हैं, तो बहुत सारी ऐसी मायोपिक पैथोलॉजीज़ हैं जिनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं उन पेशेंट्स में। यहाँ पे इस पिक्चर में भी यही बताया गया कि ये स्टीप कॉर्निया है, लेंस प्लेस किया गया और जब लेंस को रिमूव किया गया तो कॉर्नियल शेप जो है वो चेंज हो चुकी है। ओवरनाइट लेंसेज को यूज़ किया गया, मॉडर्न टाइम में उनको रिमूव कर लिया गया। और उसके बाद हमारी एक और स्ट्रॉन्ग जो इंडिकेशन बनती है फॉर स्पेशल पर्पस कॉन्टैक्ट लेंसेज, वो है प्रोस्थेटिक लेंसेज। आप यहाँ देख रहे हैं कि बेसिकली लिम्बल रेडनेस है, तो यहाँ पे अगर लेंस प्लेस किया गया तो रिलेटिवली नॉर्मल अपीयरेंस अचीव होगी। इसके अलावा कॉर्नियल स्कारिंग है, कॉर्नियल और एबनॉर्मलिटीज़ हैं, फॉर एग्जांपल उन तमाम में प्रोस्थेटिक लेंसेज यूज़ हो सकते हैं। ऐसे केसेस जिनको एनआरईडी है, आयरस है ही नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग उनको ग्लेयर इश्यूज आते हैं डे लाइट में, तो अगर हम उनको ये लेंसेज यूज़ करा दिए जाएँ जिनमें सेंट्रल प्यूपल पोर्शन ट्रांसपेरेंट और पेरिफेरल टिंटेड हो, तो ओपेक हो, तो वो बहुत अच्छी विजुअल आउटकम्स अचीव कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑक्लूजन थेरेपी के लिए ये लेंसेज यूज़ हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह मैडम ने मेंशन किया, यहाँ पे एम्ब्लायोपिया थेरेपी और डिप्लोपिया एक बहुत सीरियस इशू लेटर ऑन हमें एडल्ट ईयर्स में इशू फेस किया जा सकता है, जिसमें पेशेंट ड्राइव भी नहीं कर सकते, नॉर्मल रूटीन एक्टिविटीज़ को भी वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में नॉर्मल रूटीन में हमें पैच करना पड़ता है, लेकिन पैच की ज़रा कॉस्मेटिक इशूज़ आ जाते हैं, सोशल इशूज़ आ जाते हैं। तो इनको एड्रेस करने के लिए एक आइडियल ऑप्शन ये हो सकती है कि हम उनको ऑक्लूसिव कॉन्टैक्ट लेंसेज प्रिस्क्राइब करें। इन एम्ब्लायोपिया आपका ये सेंट्रल पोर्शन ओपेक होगा, तो जो आपकी गुड आई है आप उसको पैच कर सकते हैं, और जो आपकी वीक आई में बेटर विजुअल आउटकम्स हम अचीव कर सकते हैं और सोशल इश्यूज़ को भी एड्रेस किया जा सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, डिप्लोपिया में जो आपकी एक आई को आप टेम्परेरी, जब तक कि आपका मेन इशू रिजॉल्व नहीं होता उस वक्त तक आप एक आँख को पैच कर सकते हैं, पैच इन अ सेंस विद द हेल्प ऑफ अ कॉन्टैक्ट लेंस। तो पेशेंट नॉर्मली अपने डेली रूटीन एक्टिविटीज़ अपने मैनेज कर सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास प्रेस्बियोपिक कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, जिसके हवाले से मैडम बीनिश ने अच्छे तरीके से ऑलरेडी बता दी है, सो आई विल स्किप इट। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव गॉट टॉरिक लेंसेज, जो एस्टिग्मेटिक पेशेंट्स हैं उनको मैनेज करने के लिए यूज़ होते हैं। रेगुलर एस्टिग्मेटिज्म को एड्रेस किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ अ टॉरिक लेंसेज, लेकिन इरेगुलर के लिए फिर हमें स्क्लेरल कॉन्टैक्ट लेंसेज और आरजीपीज़ की तरफ ही मूव करना पड़ेगा। उसके अलावा हमारे पास बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, जहाँ पे कॉर्नियल एब्रेजन्स या कॉर्नियल पैथोलॉजीज अराइज हों, वहाँ पे पेन को रिलीव करने के लिए प्रोटेक्शन ऑफ द कॉर्निया, हीलिंग ऑफ द डिजीजेज एंड सीलिंग ऑफ द वुंड्स, जब तक कि वो लेट्स से कि कोई पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गई, कॉर्नियल टीयर आ गया, अब आँख की जो एक्वस को ड्रेन आउट होने से बचाने के लिए टेम्परेरीली वी कैन यूज़ बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस सो दैट ये दे माइट रीच अप्रोप्रिएट हॉस्पिटल, जहाँ पे उनको बाकायदा स्टिच करके उस वुंड को मैनेज किया जाए। उसके अलावा जो ड्रग डिलीवरी टाइम है बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंसेज से वो बहुत इंप्रूव हो जाता है। यहाँ पे ये कॉर्नियल एब्रेजन है, और अगर हम यहाँ पे बैंडेज कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ कराते हैं तो उससे होगा ये कि पेशेंट विल फील रिलेटिवली कंफर्टेबल। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जिस तरह मैडम ने पहले बताया कि यूनिलेटरल एफेकियाज, अगर लेट्स से अगर हम ग्लासेस प्रिस्क्राइब करें, बहुत बड़ा एनेसोमेट्रोपिया, एक आँख में पेशेंट इज ईमेट्रोप, दूसरी आई में +10 +20 डायप्टर्स का हाइप्रोपिया है, जिसको हम वैसे किसी भी तरह मैनेज नहीं कर सकते, और अर्ली एज में जो लेंस इम्प्लांट है वो भी पॉसिबल नहीं होता। तो ऐसे केसेस में आइडियली अगर यूनिलेटरल एफेकियाज में हम प्लस लेंसेज कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ कराएं, तो जो डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स हैं उनको हम इजीली मैनेज कर सकते हैं। एक बच्चा जिसने ब्लाइंड हो जाना है एट द एज ऑफ 1 to 2 ईयर्स, अगर हम प्रॉपर लेंस उसको प्रॉपर यूज़ करा दें और वो मैनेज हो जाए, जब तक कि उनको लेंस इम्प्लांट नहीं होता, 2 से 3 साल अगर वो ये मसला मैनेज कर लें, तो पेशेंट कैन अवेल खुद फुल बाइनोकुलर विजन विच विल बी क्वाइट यूजफुल। और अर्ली एज में अगर फर्ज करें उनको हम लेंसेज ये नहीं यूज़ कराते, तो डेंस एम्ब्लायोपिया होना, जितनी अर्ली एज में रिफ्रैक्टिव एरर का डिफरेंस होगा उतना डेंस एम्ब्लायोपिया होगा। तो प्राइमरीली इसको हम इस इशू को बड़े आसानी से इसको मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आपकी एक्सपर्टीज़ काम आएगी। जी, थैंक यू वेरी मच। कोई क्वेश्चंस हैं तो काइंडली, मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। Effectively and very fast.
लो विजन तेजी में मुकाबला करना बड़ा मुश्किल है जाहिद साहब का। लो विजन पे भी हमने किया। हाँ नहीं, पहले लो विजन पे था, अब कॉन्टैक्ट लेंसेज पे है, तो अगला आपका स्क्विंट और उस पे भी है ना 3-4। हाँ वो भी सारा हो गया। वो सेशंस आपके सामने ही है कि हमें बनाना काफ़ी मुश्किल काम था, तकरीबन 105 सेशन है और स्पीकर 300 से ऊपर है, लेकिन मेरा मतलब आप लोगों के बगैर इट्स नथिंग। हम तो उसको डिज़ाइन कर सकते हैं, बट कंग्रेचुलेशन एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। अच्छा अभी ब्रेक है मुइन, इसके बाद अच्छा ठीक है।